हेलो फ्रेंड्स, लर्न इट वन क्लिक चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में 7th और 8th अगस्त की करंट अफेयर डिस्कस करूंगा फ्रेंड, जो कि द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस से एक्सट्रैक्ट किया न्यूज है फ्रेंड्स। इस वीडियोज की जो भी है न्यूज मैं अपने फेसबुक पेज लर्न इट वन क्लिक पर भी इसकी एज अ वर्ड फॉर्मेट में अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसे आप वहाँ से एज शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप रेफर कर सकते हैं। और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके फ्रेंड, जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे आप डेली अपडेट रहेगा। और फ्रेंड, करंट अफेयर बूस्ट करने के लिए एक आसान सा तरीका है डेली करंट अफेयर को विजिट करना, अपडेट करना। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी सिलेक्टिव करंट अफेयर कवर करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हेडलाइंस की बात करते हैं। आज मैं 2 दिनों का करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ, तो लगभग टोटल 36 करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है। तो आइए हम हेडलाइंस डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंस डेट हैं, 2 डेट हैं। हिरोशिमा डे अगस्त 6 को मनाया जाता है, और नेशनल हैंडलूम डे अगस्त 7 को। ओके फ्रेंड, गवर्नमेंट मर्ज एनसीआरबी विद BPRD. Delhi police tie up with Uber to enhance women's safety. Assam government all set to distribute 13 lakh soil health card among farmers. Mughal Sarai railway station in Uttar Pradesh renamed after Deen Dayal Upadhyay. Indian Navy band join historic Edinburgh military tattoo. MobiKwik partner Bajaj Finance for larger financial service pie. Mastercard PayPal expand partnership into Asia Pacific. PNB customer to pay higher charge for non-credit service. Government form action plan for easy execution of trade facilitation agreement. FMCG Britannia to set up largest plant in Maharashtra. Government revised the ratio of All India Wholesale Price Index WPI from 2004 to 2011-12. Venkaiah Naidu elected as 13th Vice President of India. Economist Rajiv Kumar to be new Vice Chairman of Niti Aayog. Indian philanthropist Firoz Merchant honored by UAE government. Aparna appointed as executive director of World Bank. Infosys to buy London's brilliant vessels for 30 lakh 63 crore rupees. Finance minister to subsidize losses. US summit official withdrawal from Paris Climate Pact. GST Shiksha hub for small enterprise. GST Council clear eBay bill. FB leaves Alphabet and Microsoft behind. Netherlands crowned European champion. NASA's Curiosity rover marks 5 years of Mars exploration. IIT Delhi team develop a new antibacterial drug delivery system. Sri Lankan Navy commission India build AOPV. ISC Bangalore researchers develop a low-cost sensitive carbon monoxide sensor. NASA's Hubble detect exoplanet with glowing water atmosphere. ONGC beat Bangalore Hockey 4-2, win MCC Murugappa Gold Cup. Ankur Mittal win gold medal in Asian Shotgun Championship. BCCI order to lift lifetime ban on cricketers in sent by Kerala High Court. World's shortest woman unveil 51 feet high book. Vijayendra Singh on WBO Oriental Super Middleweight title. Usain Bolt finished third in World Athletics Championship. Manju Kumari and Veerdev Gulia win bronze in Junior World Wrestling Championship. ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम डिटेल्स में न्यूज एनालिसिस करते हैं, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर ने एक ऑर्डर पास किया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मर्ज करने के लिए। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें और एफिशिएंसी लाएंगे, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हेल्प से। जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, वो ये न्यू एंटिटी को हेड करेंगे, और एनसीआरबी के डायरेक्टर का जो पोस्ट होगा एडिशनल डीजी के रैंक के बराबर होगा। ओके, देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनसीआरबी एंड बीपीआरडी की। एनसीआरबी
1986 में फॉर्म्ड हुआ था और ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम डेटा को कलेक्ट करता है वेरियस पैरामीटर पर, चाहे वो सेंट्रल के अंडर में हो या फिर स्टेट के अंडर में हो। ओके, बीपीआरडी को 1970 में बनाया गया था और ये एक नेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टडी, रिसर्च एंड डेवलप करता है सब्जेक्ट एंड इशू रिलेटेड टू पुलिसिंग के बारे में। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। ओके फ्रेंड, दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ वुमेन सेफ्टी के लिए टाई अप किया है। जो हिम्मत ऐप है, अब दिल्ली पुलिस की हिम्मत ऐप है और इसके थ्रू ही दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ टाई अप किया है, जिसमें कोई भी पैसेंजर ट्रैवल करता है तो वुमेन सेफ्टी के लिए अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है और उबर के थ्रू कहाँ उसकी लोकेशन है, किस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, देखिए हिम्मत ऐप है, इसको 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर उस समय के यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, और ये दिल्ली पुलिस के अंडर कंट्रोल में है और इसे हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से फ्रेंड। ओके, असम गवर्नमेंट ने लगभग 30 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है फार्मर के बीच में, और वहाँ असम के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अतुल बोरा जी, उन्होंने बताया कि 214 सॉइल टेस्ट किट इस ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है और स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी ने इस चीज़ को अनाउंस किया है। इससे पहले अप्रैल 2016 एंड जून 2017 में लगभग 1,41,000 कार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और असम गवर्नमेंट के क्रॉप इंश्योरेंस के अंडर में गवर्नमेंट लगभग 7.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी फार्मर को दे चुकी है। यूपी की एक काफ़ी चर्चित मुगल सराय रेलवे स्टेशन, उसको रीनेम कर दिया गया है और इसका अब नाम हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जो है, इनका निधन हो गया था 1968 में। ओके फ्रेंड, तो उन्हीं के नाम पर मुगल सराय स्टेशन का नामांकन किया गया है। अब मुगल सराय स्टेशन न जाना जाएगा, अब ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन के मैं बता दूं जो रिसेंट में रीनेम्ड हुआ है, जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रीनेम किया गया है और ये इसी साल ये नामांकन हुआ है। एल्फिस्टन रोड एक रेलवे स्टेशन है, उसका नामांकन किया गया प्रभा देवी के नाम से, और एल्फिस्टन रोड स्टेशन जो कि मुंबई में है। बेंगलोर सिटी जो रेलवे स्टेशन है, इसका भी रीनेम कर दिया गया है और इसका नाम क्रांति वीरा संगोली रायना नाम रखा गया है और ये नामांकन 2015 में किया गया। मऊ रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर के पास मध्य प्रदेश स्टेट में है, इसका भी नामांकन करने के लिए ऑर्डर मिल गया है और इसका नाम जो हमारे दलित लीडर बी आर अम्बेडकर जी हैं उनके नाम पर रखा गया है फ्रेंड। ओके, A 66-member Indian Navy band had joined the historic Royal Edinburgh Military Tattoo in UK। देखिए अभी इंडिया 15 अगस्त 2017 को अपना 70 साल इंडिपेंडेंस का कंप्लीट करेगा और इसमें जो म्यूजिकल बैंड पार्टिसिपेट कर रही है रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू, उसमें इंडियन नेवी बैंड भी पार्टिसिपेट करेगी इनके साथ में, और इसमें एक ऑफिसर और 65 म्यूजिशियन सेलर रहेंगे। देखिए रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू 1950 में स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू और ये इंटरनेशनल म्यूजिशियन का ग्रुप है और ये लगभग 50 कंट्रीज में परफॉर्म करते हैं और ये एनुअल सीरीज ऑफ मिलिट्री टैटूज परफॉर्म करते हैं ब्रिटिश आर्म फोर्स के द्वारा, कॉमनवेल्थ एंड इंटरनेशनल मिलिट्री बैंड एंड आर्टिस्ट परफॉर्मेंस टीम ऑफ एडिनबर्ग कैसल इन स्कॉटलैंड में परफॉर्मेंस अपना देते हैं। ओके फ्रेंड, मोबीक्विक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन है मोबीक्विक, वो बजाज फाइनेंस के साथ टाई अप किया है अपने पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए और बजाज फाइनेंस का मोबीक्विक में लगभग 10.83% शेयर होल्डिंग रहेगा, इक्विटी रहेगा इनका, जो इसकी टोटल वर्थ 225 करोड़ रुपीज है। अब जो भी बजाज फाइनेंस अपना आर्टिकल्स
सेल आउट करना चाहता है वो मोबीक्विक ऐप के थ्रू। तो बजाज फाइनेंस मोबीक्विक ऐप के थ्रू अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल बेचेगी। ओके। मास्टर कार्ड और पेपल ने टाई अप किया है एशियन पैसिफिक रीजन में अपने पार्टनरशिप को एक्सपेंड करने के लिए। और देखिए, पेपल जो है और मास्टर कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाने जाते हैं। और एक जितने भी ऑनलाइन पेमेंट होता है वो पेपल के थ्रू, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेमेंट ऐप है फ्रेंड, पेमेंट सिस्टम है जो ऑनलाइन पेमेंट मनी ट्रांसफ़र के लिए जाना जाता है। और पेपल 1998 में बनाया गया था यूएस में, और इसके हेडक्वार्टर सैन जोस कैलिफोर्निया यूएस में है। और पेपल के जो सीईओ हैं डैन एस कोलमन, एंड अभी चेयरमैन है जॉन डैनियो। ओके फ्रेंड, देखिए एक थोड़ी सी सैड न्यूज है पीएनबी कस्टमर के लिए, क्योंकि पीएनबी अब चार्ज करना शुरू कर देंगे अगर आप अपने होम सिटी में ही कैश डिपॉजिट करते हैं 500 रुपीज़ से ज़्यादा। तो अगर आप अपने होम ब्रांच में नहीं कैश डिपॉजिट करते हैं, होम ब्रांच के अलावा किसी और ब्रांच में डिपॉजिट करते हैं कैश, तो आपको 500 से ज़्यादा डिपॉजिट करने पर चार्ज देना होगा। ये चार्ज 1 रुपये पर 1000 होगा और 500 से ज़्यादा है, और मिनिमम 25 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन होगा। ओके, देखिए पहले ये 25,000 पर लागू होता था, बट अब ये 5,000 25,000 से रिड्यूस करके 5,000 कर दिया गया है। वहीं पर अगर आप आउट स्टेशन पर 5,000 से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन 2 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा, और मिनिमम 25 रुपीज़ जो भी मिनिमम होगा। ओके, और पीएनबी ने लॉकर रेंट पर भी अपनी 25% इंक्रीमेंट की है स्मॉल मीडियम लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज साइज में। अगर स्मॉल है तो 1500, और मीडियम है 3500, लार्ज है तो 5500, एंड एक्स्ट्रा लार्ज आपका लॉकर है तो 10,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। इसमें लगभग 25% रुपीज़ इंक्रीमेंट करने के बाद ये डेटा बनाए प्रिपेयर किया गया है। तो पीएनबी की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इस फॉर्म्ड हुआ था 1894 में 19 मई को, और टैगलाइन है द नेम यू कैन अपॉन। और पीएनबी के अभी एमडी एंड सीईओ है सुनील मेहता जी। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए एक प्लान बनाया है जिसका नाम है नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान 2017 टू 2020। ओके, और ये बनाया गया है, रिकमेंडेशन हुआ था 4 वर्किंग ग्रुप ऑन लेजिस्लेशन चेंज, टाइम रिलीज स्टडी, आउटरीच प्रोग्राम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेंड, इसमें सजेशन प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के बीच में, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए जो भी सजेशन होंगे इस प्लान में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए 0 to 6 मंथ टेन्योर रखा गया है, मीडियम टर्म के लिए 6 to 18 मंथ, और लॉन्ग टर्म के लिए 18 to 36 मंथ टेन्योर है। FMCG ब्रिटानिया टू सेटअप लार्जेस्ट प्लांट इन महाराष्ट्र। FMCG ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो है अपना लार्जेस्ट प्लांट महाराष्ट्र के फूड पार्क रंजन गांव में बनाने जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिवाइज किया है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स 2011-12 हो जाएगा, पहले ये 2004 और 5 था। यहीं पर होलसेल प्राइस इंडेक्स में लगभग पहले 76 आइटम्स थे और अब 697 आइटम हो गए हैं, और जो भी कोटेशन है 5482 से इंक्रीमेंट करके 8331 कर दिया गया है। तो याद रखने वाली ये चीज़ है कि ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है अब 2011-12 कर दिया गया है, पहले था 2004 एंड 5। हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट अब वेंकैया नायडू जी हैं, ये इलेक्ट हो चुके हैं और ये ओथ अपना शपथ ग्रहण करेंगे 11 अगस्त 2017 को, और उसके बाद ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो जाएंगे 11 अगस्त 2017 से। और मुकुल पांडे जो है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर फॉर वाइस प्रेसिडेंशियल 2017 हो।
अभी कुछ दिन पहले अरविंद पंघरिया जी, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और अब इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार को नीति आयोग का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और ये 5 अगस्त 2017 को इनको ये अपॉइंट किया गया। और देखिए, जो विनोद पॉल हैं, वो एक डॉक्टर हैं और नीति आयोग के मेंबर इनको अपॉइंट किया गया है। और पॉल जो है एक पेडिस्टेरियन है एम्स में, और वो अब जाने जाते हैं सब्सटेंशियल वर्क इन पब्लिक हेल्थ में। और राजीव कुमार है वो सीनियर फेलो एट सेंटर फॉर पॉलिसी एंड रिसर्च और चांसलर ऑफ द गोखले इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स पुणे में वर्क करते थे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा सर्दी है, मुझे तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं, कंटिन्यू। यूएई में एक इंडियन फिलेंथ्रोपिस्ट हैं फिरोज मर्चेंट, उनको यूएई गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है सिल्वर सर्विस मेडल के थ्रू, जिसमें देखिए ये फिरोज मर्चेंट है, उन्होंने लगभग $4 मिलियन देकर यूएई में जो भी इंडियन प्रिजनर थे उनको रिलीज किया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे जिस वजह से वो जेल में थे। तो उनके बदले में इन्होंने लगभग $4 मिलियन खर्च करके उनको रिलीज किया है यूएई से। तो इस संदर्भ में यूएई गवर्नमेंट ने उनको कम्युनिटी सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। अभी गुजरात की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, गुजरात गवर्नमेंट की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एस अर्पणा जी, उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक के लिए अपॉइंट किया गया है इंडिया की तरफ से। और ये वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करेंगे कंस्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका के भी। और एस और अपर्णा जी जो हैं वो एससी गर्ग को रिप्लेस करेंगे, और एससी गर्ग अब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे। यूएस ने अपना फाइनल विड्रॉल दे दिया है, ऑफिशियल सबमिट कर दिया फाइनल ऑफिशियल विड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एक्ट से। देखिए, पेरिस क्लाइमेट एक्ट क्लाइमेट चेंज होने पर मीटिंग चलती थी यूनाइटेड नेशन की, और जिसका एक टारगेट था कि हाँ 2020 तक वर्ल्ड से जो भी पॉल्यूशन इंक्रीमेंट हो रहा है उसे कम किया जाएगा। हर कंट्री अपना अपना एक प्रोपेगेंडा बनाएगी, और इसका नाम पेरिस क्लाइमेट रखा गया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और ये यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम है। ओके, इसमें लगभग 196 पार्टी रिप्रेजेंट करती है। 21 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस हुए हैं, और ये बनाया गया था 12 दिसंबर 2015 को। तो यूनाइटेड नेशन ने पेरिस क्लाइमेट से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया विड्रॉल अपना। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने फाइनेंस मिनिस्टर को ऑर्डर दिया है कि हाँ, रेलवे को जो भी लॉस हो रहा है उसको एज सब्सिडी तौर पर फुलफिल करे। रेलवे लगभग 34,000 करोड़ रुपीज लॉस में है अभी, सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन के ने जो भी यूज हुआ है उसके तहत में। देखिए, जब से रेल बजट और यूनियन बजट मर्ज हुआ है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, रेलवे में जो भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट होता है उसको मैनेज करे। और इस बार 34,000 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री को देने वाली एज ए सब्सिडी के तौर पर। जीएसटी शिक्षा हब फॉर स्मॉल इंटरप्राइज, टीसीएस आयन ने अनाउंस किया है कि हाँ, वो लघु उद्योग भारती के साथ पार्टनरशिप करके जीएसटी रिलेटेड कंटेंट को लॉन्च करेगा, जो कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जीएसटी काउंसिल ने ईबेल की क्लियरेंस दे दी है, और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा, 50,000 रुपये तक की शिपमेंट देते हैं 10 किलोमीटर के एरिया में, तो उसके लिए आपको जीएसटी काउंसिल से अप्रूवल लेने पड़ेगी और रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, फेसबुक ने अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए इस पर एम्प्लॉय प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। फेसबुक का जो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट है 1.2 करोड़ रुपीज पर एम्प्लॉय है, वहीं पर ट्विटर लॉस में जा रहा है। ट्विटर 22 लाख पर एम्प्लॉय लॉस में जा रहा है। देखिए, फेसबुक के पास 20,658 एम्प्लॉय हैं और पर एम्प्लॉय ये 1.2 करोड़ रुपीज प्रॉफिट में है। वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट 33 लाख रुपये और अल्फाबेट 29 लाख रुपये पर एम्प्लॉय
प्रॉफिट में है। ओके फ्रेंड। नीदरलैंड क्राउन यूरोपियन चैंपियन। नीदरलैंड ने डेनमार्क को 4-2 से हराते हुए यूरोपियन चैंपियनशिप 2017 को अपने नाम कर लिया है। वहीं पर मेडमा ने सेकेंड स्कोर करते हुए 89 मिनट में डच को पहली बार यूरोपियन चैंपियनशिप बनाया है। ओके। इन्फोसिस ने लंदन की एक फर्म है ब्रिलियंट बेसिस, उसको 62.76 करोड़ में एक्वायर कर लिया है। जो इस इन्फोसिस एक सॉफ्टवेयर जाइंट है और ये एक्विजिशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये हेल्प करेगा डिजाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड सर्विस को यूरोप एंड वेस्ट एशिया में इम्प्रूव करने के लिए। आईआईटी दिल्ली के टीम ने डेवलप किया एंटीबैक्टीरियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसका अभी क्लिनिकल अप्रूवल बाकी है और ये बहुत कम डोज में एक एंटी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं जिससे डिजीज होते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और बायोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच दैट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग देयर बाय रिड्यूसिंग द डोजेज यूज फॉर ट्रीटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत कम डोज में एंटीबैक्टीरियल ड्रग ये यूज किया जाएगा फ्रेंड। श्रीलंकन नेवी कमीशन इंडिया बिल्ट अप। श्रीलंकन नेवी कमीशन ने एक इंडियन बिल्ट अप स्टेट ऑफ आर्ट एडवांस ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशन किया है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है फॉरेन शिप बिल्डर से परचेज किया गया है और ये अपने सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए इन्होंने ओपीवी को परचेज किया है। आईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। वहाँ के रिसर्चर ने एक हाईली सेंसिटिव लो कॉस्ट नैनोमीटर स्केल कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर डेवलप किया है और ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए इस सेंसर को यूज किया जाएगा। और ये सेंसर जो है एक नैनोमीटर साइज का है जो कि जिंक ऑक्साइड के नैनो स्ट्रक्चर और सिलिका वेफर सब्सट्रैक्ट से बनाया गया है। ओके फ्रेंड, तो आईएससी बेंगलोर की काफ़ी बड़ी ये डेवलपमेंट है जो कि पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर पॉल्यूटेंट्स में काउंट किया जाता है, तो इसको कम करने के लिए जिंक ऑक्साइड का नैनो स्ट्रक्चर को सिलिकॉन वेफर सब्सट्रैक्ट के थ्रू इसे बनाया गया है। नासा हर्बस डिटेक्ट एक्सोप्लैनेट विद ग्लोइंग वाटर एटमॉस्फेयर। नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक डिस्कवर किया है एक्सोप्लैनेट को जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर और इनॉर्मस प्लैनेट आउटसाइड ऑफ सोलर सिस्टम WAPS जिसका नाम है WASP-121b। और ये डिस्कवरी हुआ है इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्च लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर बाय ऑब्जर्विंग ग्लोइंग वाटर मॉलिक्यूल्स इन WASP-121b के एटमॉस्फेयर में। देखिए WASP-121b क्या है। ये लगभग एक प्लैनेट जो है 900 लाइट ईयर अर्थ से दूर है और इसमें गैस यहाँ पे बहुत मात्रा में भरी हुई है और ये लगभग हॉट जुपिटर के कंपेरेटिव जाना जाता है। और ये जुपिटर कंपेरेटिवली 1.2 टाइम्स मास में बड़ा है और 1.9 टाइम्स इसके रेडियस बड़े हैं। ये अपने नियरेस्ट सन की जो ऑर्बिट है उसे कंप्लीट करता है। अब उसके कंपेरेटिवली जो WASP-121 है अपने 1.3 डेज में कंप्लीट कर लेता है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी गर्म एटमॉस्फेयर है फ्रेंड। ONGC ने बेंगलुरु हॉकी को 4-2 से MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप में हरा दिया है और ये 91st ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट था। देखिए ONGC के बारे में बताऊं तो ONGC की हेडक्वार्टर देहरादून में है। चेयरमैन MD DK सराफ हैं। इसकी फॉर्मेशन 14 अगस्त 1956 को हुई थी और ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी है। ओके, और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अंकुर मित्तल विन गोल्ड मेडल इन एशियन शॉटगन चैंपियनशिप। इंडियन शूटर अंकुर मित्तल ने 7th एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं देखिए मित्तल के बारे में बताऊं तो इन्होंने 2016 में मैक्सिको में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हुआ था वहां भी गोल्ड जीता था और इन्होंने सिल्वर जीता था वर्ल्ड कप इनॉग्रल वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में।
बीसीसीआई ने ऑर्डर दिया है, बीसीसीआई को केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बीसीसी फॉर्मर इंडियन बॉलर जो एस श्रीसंत हैं उनके ऊपर 2013 में आईपीएल के दौरान फिक्सिंग के लिए बैन लगाया गया था, लाइफ टाइम बैन, उसको हटाने के लिए, क्योंकि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बैन हटा दिया है। तो इसके रिगार्डिंग बीसीसीआई के खिलाफ श्रीसंत ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। तो केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है बीसीसीआई को कि हाँ, लाइफ टाइम बैन क्रिकेटर एस श्रीसंत से हटाया जाए। वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट वुमेन जिनका नाम है ज्योति आमगे, इनकी हाइट लगभग 62.8 सेंटीमीटर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। इन्होंने कड़वे वचन बुक जो कि जैन सेंट आचार्य तरुण सागर महाराज के द्वारा लिखा गया है, उसको रिप्रेजेंट की है एक प्रोग्राम में। ओके फ्रेंड, विजेंद्र सिंह सन ऑफ WBO ओरेंट सॉरी फ्रेंड, विजेंद्र सिंह वन WBO ओरिएंटल सुपर मिडिल वेट टाइटल। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने चाइना के जुल्पिकर मियामतियाली को हराते हुए WBO एशिया पैसिफिक एंड ओरिएंटल सुपर मिडिल वेट टाइटल को जीत लिया है फ्रेंड। उसेन बोल्ट को ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि 6 अगस्त को हुआ, और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 4 अगस्त से 13 अगस्त तक लंदन में खेला जा रहा है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है पहली बार 1983 में स्टार्ट किया गया था और हर 4 साल के इंटरवल पर खेला जा रहा है। और सॉरी फ्रेंड, उस समय जब स्टार्ट किया था हर 4 साल के इंटरवल पर खेला जाता था, बट अब हर 2 साल के इंटरवल पर 1991 से खेला जाता है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स जो है जिसको ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF ने। मंजू कुमारी ने वीर दवे गुलिया विन ब्रॉन्ज इन जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। मंजू कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स के 59 kg कैटेगरी में, जो कि जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप टैमिरा फिनलैंड में हुआ है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है, क्योंकि आज के उसी दिन 6 अगस्त 1945 को यूएस ने जापान के हिरोशिमा सिटी पर एटम बम डाला था, और यह पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसमें लगभग 1,80,000 तक लोगों की डेथ हुई थी, और उस समय जापान की पॉपुलेशन 3,50,000 के आसपास थी। 63% ऑफ बिल्डिंग उस समय पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे, 92% ऑफ स्ट्रक्चर डिमोलिश हो गए थे वहाँ पर। और बराक ओबामा यूएस फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कि हिरोशिमा विजिट किए थे लास्ट ईयर। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। यह थर्ड हैंडलूम डे है इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त 2015 को हैंडलूम डे की स्टार्टिंग की थी, और उन्होंने चेन्नई में एक फंक्शन के दौरान इसकी स्टार्टिंग की थी। और ये अब हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सिग्निफिकेंस इन इंडियन हिस्ट्री एज अ स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1905 में लॉन्च हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी कंटेंट्स है उसको मैं एज अ वर्ड फॉर्मेट अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दिया हूँ, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया हूँ, जिस आप वहाँ से शॉर्ट नोट्स के लिए मेंशन कर सकते हैं मेरे वीडियो देखने के बाद। ओके फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून टू माय चैनल।